نیب ترمیمی آرڈیننس حتمی مسودے میں سرکاری افسران کے خلاف کارروائی، سکروٹنی کمیٹی سے مشروط کرنے کی شک شامل نہیں۔ کرپشن کی حد 50 کروڑ اور 3 ماہ میں تحقیقات مکمل نہ ہونے پر ضمانت کی شکیں بھی نکال دی گئیں۔ آرڈیننس فوری نافذ العمل، نوٹیفیکیشن جاری۔ ٹیکس اور لیوی کے معاملات نیب کے اختیار سے باہر، جاری انکوائریز متعلقہ فارمز کو منتقل۔ نیب عوامی عہدیدار کے خلاف بد انتظامی کے الزام میں کارروائی نہیں کر سکے گا۔ نیب ترمیمی آرڈیننس 2019 سالہ عدالتوں میں چیلنج۔ آرڈیننس کے خلاف سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں درخواست دائر۔ محمود نقوی نے موقف اپنایا، آرڈیننس آئین کے آرٹیکل 25 کے خلاف ہے۔ وزراء اور سرکاری افسران کی کرپشن کو تحفظ دینے کی کوشش ہے۔ عدالت نیب ترمیمی آرڈیننس معطل کرنے کا حکم دے۔ لاہور ہائی کورٹ میں بھی آرڈیننس کے خلاف درخواست دائر۔ کہ ہماری گورنمنٹ کسی صورت اصلاحات سے اور ریفارم سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اس وقت جو ہندوستان کر رہا ہے کشمیر میں اور مسلمانوں سے، یہ سارے ہیومینیٹیرین لاز کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ وزیراعظم کا پرانے مافیا پر تبدیلی میں مزاحمت کا الزام۔ پشاور میں خطاب میں کہا، اسپتالوں میں اصلاحات کو نجکاری کا نام دے کر ناکام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تاجر ٹیکس نیٹ میں آنا نہیں چاہتے، حکومت اصلاحات سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ عمران خان نے مودی حکومت کو فسطائی قرار دیتے ہوئے کہا، بھارت دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں نے شہید بےنظیر بھٹو کی 12ویں برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی۔ برطانیہ، جرمنی، فرانس، سعودی عرب سمیت کئی ممالک میں تقاریب۔ اوورسیز پاکستانیوں کی بھرپور شرکت، جیالوں نے شہید قائد کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لندن میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ایمان افروز محفل۔ نگران شورا حاجی عمران اتاری نے معاشرتی برائیوں پر فکر انگیز بیان کیا۔ محفل میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور شرکت۔ ٹنڈی میں تحریک منہاج القرآن اور جامع مسجد بھرال کے زیر اہتمام روح پرور محفل حسن قرار۔ عالمی شہرت یافتہ قاری الشیخ نثار احمد نعیمی کی خصوصی شرکت۔ خوبصورت تلاوت سن کر حاضرین پر وجد طاری ہو گیا۔ گوادر میں ترقیاتی کام عروج پر ہیں۔ سی پیک منصوبہ علاقے کی شکل بدل دے گا۔ پاکستان عوامی پارٹی کے سینیٹر قہدہ بابر کی اولڈ ہیم میں پریس کانفرنس۔ بریفنگ میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی شریک ہوئے۔ ترکی میں کشتی کے حادثے میں جاں بحق ہونے والے 2 پاکستانی تارکین وطن کا تعلق سیالکوٹ اور ناروال سے ہے۔ اسپین کے شہر سبادر میں مہاجرین کے لیے کام کرنے والی مقامی فیڈریشن کی 10 سالہ خدمات کا اعتراف۔ تقریب میں سیکرٹری امیگریشن ایرول اماروس کی خصوصی شرکت۔ تنظیم کے فلاحی سرگرمیوں کو سراہا۔ امریکی صدارتی الیکشن میں سائبر حملوں کا خدشہ، ٹرمپ انتظامیہ نے واشنگٹن میں خصوصی تربیتی پروگرام کا آغاز کر دیا۔ فوجی اہلکاروں سمیت امریکہ کی 24 ریاستوں کے امیدوار شریک۔ روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں 92 نیوز UK کی سالگرہ کی پروقار تقریب۔ ماسکو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ہیڈ آف کمیشن فار پاکستان کی خصوصی شرکت۔ پاک روس تعلقات میں گرمجوشی کے لیے 92 نیوز نے اہم کردار ادا کیا۔ اوورسیز پاکستانی 92 نیوز کی صحافی خدمات کے معترف۔ اور ہزاروں فلمی گیت تخلیق کرنے والے خواجہ پرویز کے مداح آج ان کا 87واں یوم پیدائش منا رہے ہیں۔ نامور نغمہ اور منفرد شاعر کا اصل نام غلام محی الدین اور تخلص پرویز تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں ثنا عثمان۔ ناظرین، سردی کی شدت بڑھتے ہی ملک میں گیس کا بحران شدت اختیار کر چکا ہے۔ چولہے ٹھنڈے، ٹرانسپورٹ بند اور صنعتوں کا پہیہ جام ہو چکا ہے۔ ایسے میں جب عوام حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں تو حکمران مسئلہ حل کرنے کے بجائے ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں۔ سندھ وفاق تو وفاق سندھ کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ اس گیس بحران کا اصل ذمہ دار ہے کون، بتائیں گے اسی بلیٹن میں، مگر پہلے ذکر نیب ترمیمی آرڈیننس کا جو پورے پاکستان میں نافذ العمل ہو چکا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی کے دستخط کے بعد وزارت قانون
कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस नए कानून के तहत नैब क्या कुछ कर सकता है और क्या नहीं, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। हमने ऑर्डिनेंस के जरिए बिजनेस कम्युनिटी को इंसुलेट कर दिया है नैब से। मेरे कई दोस्त भी बैठे हुए जिनको काफ़ी खुशी होगी सुन के, उनके ऊपर भी नैब के केसेस चल रहे थे। वफाकी हुकूमत ने कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के पर उतरते हुए नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम कर दी। वजारत कानून की समरी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूर कर ली। वजारत कानून के नोटिफिकेशन के मुताबिक नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019 का इतलाक पूरे पाकिस्तान सरकारी और साबिक सरकारी अफसरान पर होगा। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का इतलाक वफाकी और सूबाई टैक्सेस लेवी के मामलात पर नहीं होगा। नैब ने ज़ेर इल्तवा वफाकी और सूबाई टैक्सेस मामलात पर इंक्वायरीज तहकीकात मुतल्लिका अथॉरिटीज को मुंतकिल कर दी जाएंगी। वफाक और सूबाई टैक्सेस से मुतल्लिक एहतसाब अदालत में दायर केसेस मुतल्लिका फौजदारी अदालतों को मुंतकिल हो जाएंगे। नए ऑर्डिनेंस के मुताबिक नैब किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर के खिलाफ हुकूमती मंसूबा स्कीम में तरीका कार में गलती पर कार्रवाई का मजाज नहीं होगा। पब्लिक ऑफिस होल्डर की जानिब से किसी स्कीम मंसूबे या सरकारी मामले में माली फायदा लेने के शवाहिद पर नैब कार्रवाई का मजाज होगा। किसी मामले पर पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की जानिब से एडवाइस या राय देने पर नैब के पास कार्रवाई का इख्तियार नहीं होगा। ऐसे किसी मामले में पब्लिक ऑफिस होल्डर की जानिब से माली फवाइद हासिल करने के शवाहिद की मौजूदगी पर नैब कार्रवाई के लिए बाइख्तियार होगा। किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के असासों की मालियत के जायजे DC रेट या FB रेट से लगाया जा सकेगा। नैब ऑर्डिनेंस में लिखा गया है कि असासों की मालियत के दौरान DC या FBR में से जिसका रेट ज्यादा होगा वो जायजे का मायार होगा। अगर कोई काम नेक नियति के साथ सरकारी जिम्मेदारी के अंजाम दही हुई, उस पर नैब का इत्तलाक नहीं होगा। आमदन से जायद असासे होने के शवाहिद पर नैब कार्रवाई कर सकेगा। हतमी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में सरकारी मुलाजमीन को फायदा पहुंचाने की मुजव्वज़ा शिकें शामिल नहीं की गई। हुकूमत की जानिब से जारी किए गए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के हतमी मुसव्वदे में सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई स्क्रूटनी कमेटी से मशरूत करने की शिक शामिल नहीं। करप्शन की हद 50 करोड़ और 3 माह में तहकीकात मुकम्मल न होने पर जमानत की शिकें भी निकाल दी गई। हतमी नैब ऑर्डिनेंस में सरकारी अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी तहकीकात गिरफ्तारी के लिए मुजव्वज़ा स्क्रूटनी कमेटी की शिक भी शामिल नहीं। ज़राए के मुताबिक नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में करप्शन की हद 50 करोड़ रुपए मुकर्रर करने से मुतल्लिक कोई शिक नहीं। ज़राए वजारत कानून के मुताबिक नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में 3 माह में तहकीकात मुकम्मल न होने पर जमानत से मुतल्लिक भी कोई शिक नहीं। 3 माह में जमानत और 50 करोड़ रुपए से मुतल्लिक शिकें तजावीज़ के तौर पर थीं। ज़राए का यह भी दावा है कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए नैब इख्तियारात में कमी नहीं की गई। महकमाना नकाइस से माली फायदा उठाने वाले नैब की गिरफ्त में आएंगे। टैक्स से मुतल्लिक मामलात को नैब से अलग किया गया है। नए कानून के मुताबिक सरकारी ओहदे से ताल्लुक न रखने वाला शख्स नैब की गिरफ्त में नहीं आएगा। सरकारी ओहदेदार के खिलाफ भी कार्रवाई माली फायदा उठाने की सूरत में होगी। जालसाजी और बेईमानी करने वाला शख्स नैब की गिरफ्त से बाहर नहीं गया। अपोजिशन ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2019 को हुकूमती NRO करार दे दिया। नैब ऑर्डिनेंस के इजरा का मामला अदालतों में भी पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट, कराची रजिस्ट्री और लाहौर हाई कोर्ट में अलग अलग दरखास्तें दायर कर दी गई। अपोजिशन ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में रहबर कमेटी इजलास के बाद कन्वीनर अकरम दुरानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तायुनाती में ताखीर का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। उसने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए और अपने दोस्तों को बचाने के लिए ऑर्डिनेंस का सहारा लिया, और हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट की तौहीन है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं सईद गनी और नफीसा शाह ने भी नैब ऑर्डिनेंस जारी करने पर हुकूमत को खूब लताड़ा। इससे बड़ा सबूत मैं नहीं समझता कि किसी को और चाहिए कि ये जो नैब के ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून में तरामीम की गई हैं, इसका मकसद सिर्फ ये है कि चंद इमरान खान के या PTI के जो फाइनेंसर्स हैं उनको नैब से बचाया जाए। खुद इमरान खान साहब वजीर आजम कहते हैं कि मैंने अपने दोस्तों के लिए कानून बनाया। मालम झब्बा और BRT स्कैंडल्स, जो नैब के चेयरमैन कह रहे थे कि हवा का रुख कभी इधर होगा या उधर जाने वाला है,
तो वो हवा का रुख रोकने के लिए उन सबको उन्होंने रास्ता देने के लिए उन्होंने ये कानून बनाया है। मरियम औरंगजेब ने कहा, वज़ीर आज़म इमरान खान पेशावर मेट्रो, मालम जब्बा और हेलीकॉप्टर मुकदमात में नैब तफ्तीश रुकवाने के लिए ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। नैब ऑर्डिनेंस के इजरा का मामला अदालतों में भी पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट, कराची रजिस्ट्री और लाहौर हाई कोर्ट में अलग अलग दरखास्तें दायर कर दी गईं। इन दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ऑर्डिनेंस से यकसा एहतसाब मुतासिर होने का खदशा है। आइन के तहत तमाम शहरी बराबर हैं, किसी एक तबके को दूसरे पर तरजीह नहीं दी जा सकती। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान में इस्लाहात लाने के लिए बेचैन वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हर जगह माफिया बैठा है। स्टेटस को मज़ाहमत कर रहा है, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस्लाहात के एजेंडे से पीछे नहीं हटेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा पेशावर की तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। हर जगह पे रेजिस्टेंस आती है जब आप चेंज लेके आते हैं, लेकिन मैं इसलिए अपनी कौम को पहले दिन ही कहा था कि आपने घबराना नहीं है, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि हर जगह पुराना माफिया बैठा है, स्टेटस को मज़ाहमत कर रहा है, मगर हुकूमत इस्लाहात से पीछे नहीं हटेगी। जो हमारी गवर्नमेंट है वो रिफॉर्म करने आई है। प्रॉब्लम ये होता है कि रिफॉर्म्स जब आप करने जाते हैं, जब इस्लाहात करने जाते हैं, तो जब रेजिस्टेंस आती है तो कई फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट पीछे हट जाती है, डर जाती है कि कहीं मेरी गवर्नमेंट ही ना चली जाए, तो इसलिए वो फिर रिफॉर्म्स खत्म हो जाती हैं। मैं आपको ये श्योर करता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट किसी सूरत इस्लाहात से और रिफॉर्म से पीछे नहीं हटेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का पेशावर में खिताब, बोले जानबूझकर अस्पतालों की रिफॉर्म्स को प्राइवेटाइजेशन का नाम दिया जाता है, ताजिर टैक्स नेट में नहीं आना चाहते। स्टेटस को या माफिया हम कह लें, जो कि एक पुराने करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाता है, वो हर जगह रुकावटें पैदा करता है। जो हम हमारे रिफॉर्म्स को, हॉस्पिटल्स को कहता है प्राइवेटाइजेशन हो रही है, पता है कि उनको प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रही। हमने टैक्स सिस्टम लाना चाहते हैं तो कई ताजर रेजिस्ट करते हैं क्योंकि वो टैक्स नेट में नहीं आना चाहते, कई स्मगलिंग कर रहे हैं और वो स्मगल गुड्स बेच रहे हैं। तो जब हम चेंज करते हैं तो वो रेजिस्ट करते हैं। तो हर जगह पे रेजिस्टेंस आती है जब आप चेंज लेके आते हैं। इससे पहले वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास हुआ। इमरान खान को सूबाई काबीना की कारकर्दगी और कामयाबियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म का कहना है, कबायली इलाकों के इंज़माम का मकसद वहाँ के अवाम को सहूलियात देना है। इंज़माम के अमल को आगे बढ़ाना हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। इमरान खान ने बताया कि सऊदी अरब ने सियाहत के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में सियाहत के फरोग पर तवज्जो दे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। साउथ हॉल के मकामी रेस्टोरेंट में यूनाइटेड पश्तून सोसाइटी बरतानिया के जनरल सेक्रेटरी सराज आफरीदी ने फाटा से मुंतखब सेनेटर ताज मोहम्मद आफरीदी के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया। इसी पर देखिए ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। लंदन के इलाका साउथ हॉल के मकामी रेस्टोरेंट में यूनाइटेड पश्तून सोसाइटी बरतानिया के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में फाटा से मुंतखब होने वाले सेनेटर ताज मोहम्मद आफरीदी ने ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा, पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी हो या दहशत गर्दी के खिलाफ जंग, पश्तूनों ने अपने खून और जानों की कुर्बानियाँ दी। कबायलियों ने पाक फौज के शाना बशाना 20 साल तक दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ी और फतह हासिल की। ताज मोहम्मद आफरीदी ने कहा, आज फाटा की आवाज़ उठाने के लिए असम्बलियों में नुमाइंदगी मौजूद है। फाटा का इंतजाम हो चुका। हुकूमत की जानिब से 100 बिलियन के फंड्स का वादा किया गया है, जिससे तालीम, सेहत और दीगर शोबाजात में बेहतरी आएगी। हमारी आवाज़ दुनिया में जो बनता, आज अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई असम्बली में भी और कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी उसका आवाज़ उठाने के लिए हमारे मेंबरान मौजूद हैं। और जो मसाइल के ऊपर है माशाल्लाह इंतज़ाम के बाद जो एक कमेंटमेंट हो चुका है, अभी तक तो हुकूमत उसको पूरा नहीं कर सके, लेकिन उम्मीद है, हम ना उम्मीद नहीं है कि 100 बिलियन जो हमारे कमेंटमेंट है फाटा के अवाम के ऊपर लगना है, वो लगना शुरू हो जाएगा। ताज आफरीदी का मजीद कहना था, फाटा में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो चुकी है। अब बच्चों की तालीम और असातिज़ा की कमी को पूरा किया जा रहा है। कुछ ऐसे चीज़ें रह गया है जो इसको साफ़ होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर आप हमारे चीफ आर्मी स्टाफ की बात भी नोट कर लें तो उन्होंने भी अपनी स्पीचों में कहा है कि कुछ कमी है जो हमने पूरा करना है आवाम की मदद से। तो अब आवाम में ये कुव्वत आ गया, आवाम इसके खिलाफ उठते और आवाम हुकूमत को निशानदेही कराते, तो उस चीज़ को इंशाअल्लाह ताला जो कमी भी है वो साफ़ हो जाएगा। पश्तून सोसाइटी के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी रियाज महमद ने कहा, वो दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज के साथ मिलकर जंग लड़ते रहेंगे। हमारे आबा अजदाद की तारीख
ہے. آج سے 100 سال پہلے بھی ہماری تاریخ تھی, 200 سال پہلے بھی تاریخ تھی. ہم جس مٹی پہ رہتے ہیں اس مٹی کے لیے اپنا سر کٹواتے ہیں, اس مٹی پہ اپنی جان دیتے ہیں. پاکستان کی مٹی کے لیے پشتونوں کی بہت قربانیاں ہیں. 1947 کے بعد سے جتنی قربانیاں باقی قوموں نے دی ہیں, پشتونوں نے بھی بہت قربانیاں دی ہیں. آج کے دور میں اللہ کے فضل سے اور آپ لوگوں کے اور خاص کر میڈیا کی مدد سے جو فاٹا کو ضم کیا گیا ہے اور تمام پارٹیوں کی جانب سے KPK میں, ہم اس فیصلے کو سراہتے ہیں اور یہ ہمارے مستقبل کے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین فیصلہ ہوگا. تقریب کے دوران تاج محمد آفریدی, بلال آفریدی اور شفیق شیر آفریدی کو ان کی خدمات پر زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا. غلام حسین اوان, 92 نیوز, لندن. پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی جماعت پاکستان عوامی پارٹی کے سینیٹر کوہدہ بابر برطانیہ کے دورے پر ہیں. انہوں نے اولڈہم میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ہمراہ CPEC منصوبے پر میڈیا کو بریفنگ دی. اسی پر دیکھیے راجہ واجد کی یہ رپورٹ. پاکستان تحریک انصاف کی اتحادی جماعت پاکستان عوامی پارٹی کے سینیٹر کوہدہ بابر, جن کا تعلق گوادر سے ہے, آج کل برطانیہ کے دورے پر ہیں. انہوں نے اولڈہم میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہناز صدیق اور عمران چودھری کے ہمراہ CPEC منصوبے پر میڈیا کو بریفنگ دی. امید مجھے اللہ کی ذات سے یہی ہے انشاءاللہ کہ اگلے 1-2 سالوں میں گوادر میں انڈسٹریز لگی ہوئی ہوں گی اور لوگوں کو روزگار کے موقع ملیں گے. میڈیا کے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ گوادر کے منصوبے کی بنیاد 1958 میں رکھی گئی تھی اور CPEC ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کے اندر دوسرے ہزاروں پروجیکٹس ہیں. ہمیں سپورٹ کیا سر آغا خان نے اور انہوں نے گوادر خریدا. اس وقت سے ہم جانتے تھے کہ اس کی کیا اہمیت ہے. فیروز خان نون کے دور سے ہی گوادر پورٹ کو بنانے کا پروگرام تھا اور گوادر میں 1958 سے پہلے, چونکہ میں وہاں رہتا ہوں, اس سے پہلے ہمارے جو بزرگ تھے وہ ٹرانسشپمنٹ کا کام کرتے تھے. سینیٹر کوہدہ بابر کا مزید کہنا تھا کہ آپ خود گوادر آ کر دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ پچھلے 5 سالوں میں کتنا کام ہوا ہے. دعوت اسلامی برطانیہ نے ولسڈن گرین جامع مسجد اینڈ اسلامک سینٹر میں پرنور محفل کا انعقاد کیا, جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا حاجی عمران اتاری نے معاشرتی برائیوں کے حوالے سے نصیحت آموز بیان دیا. روح پرور محفل میں علاقہ بھر سے بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور معاشرتی بگاڑ کی بنیادی وجوہات پر مبنی لیکچر سنا. اسی پر دیکھیے وسیم قاسمی کی یہ رپورٹ. لندن کے علاقے ولسڈن گرین کی جامع مسجد میں تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے زیر اہتمام روحانی اور علمی محفل سجائی گئی, جس میں دعوت اسلامی کے مبلغ اور نگران شورا حاجی عمران اتاری نے غیبت, حرام اور مقام جہنم کے عنوان سے خطاب کیا. اس موقع پر حاجی عمران اتاری کا کہنا تھا کہ غیبت کو اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک میں مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف کہا ہے. غیبت ایسا فعل ہے جو انسان کی نیکیاں کھا جاتا ہے. نگران شورا کا کہنا تھا کہ ایسی بابرکت محافل میں بیان کو سنجیدہ لے کر اسے عملی زندگی کا حصہ بنائیں. ہٹ کی جاتی ہے بات نا. حضرت سیدنا امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے کسی کو غیبت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا غیبت سے بچو کیونکہ یہ انسان نما کتوں کا سالن ہے. بابرکت محفل میں شریک خالد اتاری اور حسن اتاری کا کہنا تھا کہ ایسی محافل کے ذریعے اسلامی تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں جو عملی زندگی میں مفید ثابت ہوتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ ملٹی کلچر سوسائٹی جس میں معاشرتی برائیاں موجود ہوں وہاں اس طرح اچھائی کی دعوت زندگی بدل دیتی ہے. اچھے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں. اللہ ان کا آنا بھی قبول فرمائے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے جائیں تو جس میسج کو ہم نے سنا ہوتا ہے ماشاءاللہ ایک عشق رسول کا پیغام ہوتا ہے, قبر و آخرت بہتر کرنے کا پیغام ہوتا ہے, تو بیسیکلی ہم اپنی طبیعتوں میں سنجیدگی پیدا کر اس کو پریکٹس کر لیں. نماز کا کہا گیا ہے تو نمازی بنیں, سچ بولنے کا کہا گیا سچ بولیں, حقوق لوگوں کے ادا کرنے کا ہم پیغام دیتے ہیں تو وہ ادا کریں. اس طرح کے محافل میں آئیں گے, اپنے بچوں کو لے کے آئیں گے تو علم دین سیکھیں گے, علم دین سیکھ کے اسلامی تربیت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل, اور یہی پھر اسلامی تربیت حاصل کر کے انشاءاللہ عز و جل یہ سوسائٹی کے اچھے شہری بنیں گے. We have the executive chairman of the Dawat Islami Nigrani Shura Haji Imran Attari. He's on a visit to the UK at the moment and his purpose, main aim of this visit is to rectify the people in this country and help them. In particular, he's talking about family issues and how we bring up our children, the problems that our children are facing, drugs, alcohol, adultery, all of these crimes that our youth are facing, knife crime. And inshallah today I think he's going to be talking about backbiting, which is again a cancer of society. دعوت اسلامی کی جانب سے منعقدہ اس محفل میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور شرکت کی, جن میں بچے بھی بڑی تعداد میں شامل تھے. اس موقع پر شرکا نے ایمان افروز بیان سن کر اپنے ایمان کو تازہ کیا.
किया। जामिया मस्जिद विल्सन ग्रीन में कसीर तादाद में शरीक लोगों ने अपने साथ बच्चों को लाकर उन्हें इस्लामी तालीमात से भी रोशनास कराया। वसीम कासमी, 92 न्यूज़, यूके। तहरीक मिनहाजुल कुरान और जामे मस्जिद भिलाल डंडी के ज़ेर एहतमाम महफिल हुस्ने क़िरात का एहतमाम किया गया, जिसमें आलमी शोहरत याफ्ता कारी हजरात ने शिरकत की और अपनी मशहूर कुन आवाज़ में तिलावत कुरान पाक से महफिल पर वजद तारी कर दिया। तफसीलात कैसर हबीब की इस रिपोर्ट में। मिनहाजुल कुरान और जामा मस्जिद बिलाल डंडी के ज़ेर एहतमाम महफिल हुस्ने क़िरात का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान से आए आलमी शोहरत याफ्ता कारी शेख निसार अहमद नईमी ने मशहूर कुन अंदाज में तिलावत कलाम पाक का शर्फ हासिल किया। महफिल से जामा मस्जिद बिलाल के खतीब शेख मोहम्मद अदील अलकासमी ने खिताब करते हुए कहा, दुनिया और आखिरत की कामयाबी का राज सिर्फ कुरान और साहिब कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में मुज़मिर है। रब तबारक व तआला कहीं ना कहीं किसी मौके से हमें कुरान पाक की तिलावत का मौका अता फरमाता है। इस पर रब की बारगाह में हमेशा इंसान सरबर सुजूद रहे, हमेशा अल्लाह की बारगाह में शुक्रिया बजा रहे। जो मौका मिले, जैसे जैसे मौका मिले, कुरान पाक की तिलावत किया कीजिए। दीगर उलमाए कराम और शुरका ने कहा, अल्लाह के कलाम के विर्द से हकीकी मानों में दिलों को सुकून नसीब होता है। लोगों आओ कुरान से जुड़ जाओ। कुरान की आयतें पुकार पुकार कर कह रही हैं कि बंदो कहाँ हो, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना, वो तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा। आज उम्मत मुस्लिमा जिस अफलास का, जिस मुसीबत का शिकार है, इसका वाहिद हल कुरान पाक से जुड़दाना है। तकरीबन पूरे यूके के अंदर और स्कॉटलैंड, ग्लासगो के अंदर, डंडी के अंदर ये कुरान करीम का पैगाम हर जगह हमने पेश किया और अल्लाह करीम ने ये सादत नसीब की कि मुसलमानों के सामने आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुरान करीम की तिलावत की और बहुत ही लोग महजूज़ हुए और हमें भी बहुत ही जो है ना सुकून मिला। अल्लामा आदिल कासमी ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने मुनफरिद अंदाज में सलातो सलाम का नजराना भी पेश किया। आखिर में पाकिस्तान और मुस्लिम बरादरी के लिए दुआए खैर की गई। कैसर हबीब, 92 न्यूज़, डंडी। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। ग्लासगो में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्कॉटलैंड की तरफ से साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की 12वीं बरसी इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाई गई। इस मौके पर कुरान खानी और खुसूसी दुआ भी करवाई गई। मलिक खालिद वारसी की रिपोर्ट देखिए। ग्लासगो में बेनज़ीर भुट्टो की 12वीं बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई गई। तकरीब में पीपी के जियालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्कॉटलैंड चौधरी अब्दुल मजीद थे। इस मौके पर शुरका और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने कहा, पाकिस्तान में हकूकी जमहूरियत की बहाली के लिए भुट्टो खानदान ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी। यहाँ पे बाप जो है वो उसको फांसी दे दी गई, सियासी तौर पे कत्ल कर दिया गया। माँ जो है वो जेल में है, भाई जो है वो जलावतन है और फिर वो एक खातून जो है वो अपने मुल्क के लिए वो कहती है कि मैं आखिरी सांसों तक लड़ूंगी इन ताकतों के खिलाफ और अपने मुल्क को, गरीब आवाम को उनके हकूक़ दिलाऊंगी। उनको ये भी मालूम था कि मुझे शहीद किया जाएगा, लेकिन वो इतनी दिलेर निडर सियासतदान थी। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की खातिर मैं जान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत ला के रहूँगी। वो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म थी, उसने अपने मुल्क को सर्व किया है और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उसके कातलों तक पहुँचा जाए। काफ़ी लोग गैदर हुए हैं। बीबी की बड़ी खिदमात हैं जमहूरियत के सिलसिले में। पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, दिन रात उन्होंने मेहनत की है। अल्लाह ताला उनकी कब्र को मुनव्वर फरमाए, उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और जन्नत में उनको जगह दे। शुरका की जानिब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए खिदमात को सराहा गया और इस अज़्म का आदा किया गया कि बिलावल भुट्टो की क़यादत में एक बार फिर पाकिस्तान में अवामी हुकूमत का क़याम अमल में लाया जाएगा। खालिद वारसी, 92 न्यूज़, ग्लासगो। पाकिस्तान और यूरोप समेत दुनिया भर में बसने वाले पीपल्स पार्टी के जयाले बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 12वीं बरसी के मौके पर तकरीबात का एहतमाम कर रहे हैं। ऐसी ही एक तकरीब का इनेकाद फ्रैंकफर्ट में भी किया गया। नुमाइंदा 92 न्यूज़ असगर मिर्जा की ये रिपोर्ट। पीपल्स पार्टी जर्मनी के जियालों ने अपनी शहीद लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश करने के लिए इनकी बरसी का एहतमाम किया। सदर पीपल्स पार्टी जर्मनी सैयद जाहिद अब्बास शाह, नायब सदर अली अकरम समेत मिर्जा राशिद नसीम, सैयद शबीउल हसन जाफरी ने बेनज़ीर भुट्टो को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। शुरका का कहना था कि मोहतरमा की जमहूरियत की मजबूती और बहाली के लिए ग्रां कदर खिदमात हैं जिन्हें कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का आज
यौम शहादत था और हम लोगों ने उसको बहुत अच्छे तरीके से मनाया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तारीख़ का एक ऐसा अनमिट नकूश है और ऐसा वो उनकी हिस्ट्री में रहेगी कि उन्होंने दीन और दुनिया को जो है अपने लिए हासिल किया है। और मैं ये समझता हूँ कि उनको मिशन की कामयाबी के लिए बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो अपने इस वक्त जद्दोजहद कर रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि आज के दिन हम ये अहद करते हैं कि आइन, जमहूरियत और इंसानी आज़ादी के लिए हम अपनी शहीद लीडर के फ़लसफ़े पर अमल करते रहेंगे। इसाले सवाब की इस तकरीब में कुरान ख्वानी की गई, ख़त्म शरीफ पढ़ा गया और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद, जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद के अलावा सानहकार साज में शहीद होने वाले पीपल्स पार्टी के कारकुनों की बख्शिश, बुलंदी दर्जात और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए ख़ुसूसी दुआ की गई। तकरीब में शरीक जियालों ने अपने कायद आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की क़ियादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार और इनके शाना बिशाना चलने का अज़म किया। पेरिस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप के साबिक कोऑर्डिनेटर कामरान यूसुफ घुम्मन ने बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया। राजा हबीब की रिपोर्ट। पेरिस के नवाही इलाके लाकोर्ने में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के हवाले से तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें पीपल्स पार्टी के जियालों के अलावा कम्युनिटी की नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए कामरान यूसुफ घुम्मन और दीगर ने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो की सियासी जदोजहद हमारे लिए मशले राह है और यही वजह है कि भुट्टो शहीद की तरह बेनज़ीर भुट्टो भी हमारे लिए आज भी जिंदा है। शुरका का कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान को बावकार, खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना चाहती थी और पीपल्स पार्टी के कारकुन मोहतरमा के अधूरे मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। शुरका का मजीद कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी की क़ियादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में एक बार फिर तेजी से मकबूल हो रही है और जल्द ही पाकिस्तान में हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। तकरीब के इख्तिताम पर शहीद बेनज़ीर भुट्टो के दर्जात की बुलंदी और पीपल्स पार्टी के रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआए खैर भी की गई। सऊदी अरब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी पर तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें दीगर सियासी जमातों के अरकान और पार्टी जयालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रियाज से उमैर अली की ये रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मुनक्कद होने वाली तकरीब में मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को खराजे अकीदत पेश किया। मुकर्ररीन का कहना था कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद अपने नाम की तरह बेनज़ीर थीं और हमें मोहतरमा के विजन को आगे बढ़ाने की जदोजहद करनी होगी ताकि जमहूरियत मजबूत हो सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रियाज रीजन के सदर एहसन अब्बासी ने कहा कि मोहतरमा शहीद का मिशन जारी है और पीपल्स पार्टी का हर जियाला इस पर अमल पैरा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरमा शहीद का विजन लेकर आगे चलती रहेगी, लेकिन नॉन वायलेंस, हमारे यहाँ तशद्दुद नहीं है। तकरीब से रियाज राठौर, फरा एहसन, वसीम साजिद, सुमेरा वसीम, सरदार अब्दुल रज़ाक, राना अदील, एजाज रहीम और दीगर ने भी खिताब किया। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बर्बरियत से मुतासिर होने वाले कश्मीरियों की फलाह के लिए काम करने वाली फलाही तंजीम इंस्पायर वेलफेयर फाउंडेशन की सालाना जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें फलाही इदारे के बानी मेंबर मलिक मीर जमान खान की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। इसी पर देखिए सैयद मुदस्सिर की ये रिपोर्ट। मैं पाकिस्तान हुकूमत को ये कहना चाहता हूँ, मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, ये मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उसमें भी मैंने कहा था, जरदारी साहब की गवर्नमेंट थी उसमें भी मैंने कहा था, अब इमरान खान की जनाब गवर्नमेंट में उसमें मैंने भी ये कहा था कि आप LOC जो है ये पाकिस्तान की फर्स्ट जो है ना हमारी डिफेंस लाइन है कि वहाँ पे आबादी जो है वहाँ पर रहेगी तो हमारी जो फ़ौज है वो उनके साथ जनाब दिल खोल कर जनाब जो है ना दुश्मन से मुकाबला करते हैं। अब वहाँ पे इतनी गोलाबारी हो रही है तो मैंने उस वक्त ये तजवीज़ दी थी, वहाँ देखें ना मैंने बड़ा मजबूत बैंकर इन लोगों के लिए बनाया जाए, LOC पे बैंकर, फास्ट एड और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने नहीं की है। फलाही तंजीम के चेयरमैन इमरान हमीद ने LOC पर किए जाने वाले फलाही कामों के हवाले से आगाह किया। डिफरेंट हमारे चैरिटी मेंबर्स हैं, उनके थ्रू हमने वो कलेक्शन करके आप THQ तहसील हेडक्वार्टर इस्पाल में जाकर रब्ता करें। जब वो मेडिसन 10 विक्टिम्स तक रहती हैं तो हमें उसको टॉप अप ही करते हैं और आप आज भी वहाँ पड़ी हुई हैं और आज मैं गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद कश्मीर को भी मुबारकबाद दूंगा, माशाल्लाह वो भी बड़े ज़बरदस्त काम कर रही है। शुरका ने कहा फलाही तंजीम बहुत अच्छा काम कर रही है, भारतीय फौज की जितनी मजम्मत की जाए कम है। मैं तंजीम के MD साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि बिलखुसूस मैं और मेरे बड़े भाई मेरे कायद मलिक अहमद साहब हमने भरपूर तरीके से पहले भी साथ दिया है, आइंदा भी देंगे
और देते रहेंगे। मैं इसके लिए स्पेशल अपने इमरान हमीद मलिक साहब को सल्यूट पेश करता हूँ कि वो बहुत खूबसूरत तरीके से इस तंजीम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जो गरीब तलबा और तलबात हैं जो अफोर्ड नहीं कर रहे हैं किताबें या बैग्स वगैरह जो हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए ये अरेंज कर रहे हैं। इंस्पायर वेलफेयर फाउंडेशन, इसके लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इसको दिन दुगनी और रात जुगनी तरक्की करे। इजलास में आज़ाद कश्मीर से आई कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की और फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के अज़्म का इजहार किया। मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात। स्पेन के शहर सबादल में महाजरीन के लिए काम करने वाले मुकामी फेडरेशन की 10 साला कारकर्दगी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सेक्रेटरी इमिग्रेशन और एवल अमारवस खास तौर पर शरीक हुए। इसी पर देखिए शाहिद अहमद शाहिद की ये रिपोर्ट। दुनिया भर में मौजूद गरीबुल वतन मुहाजिरीन के मसाइल और उनके हल के लिए इंसानी हुकूक की तंजीमें, मुख्तलिफ एसोसिएशंस और मुतअद्दिद फेडरेशन सरगर्म अमल हैं, जो उनकी बुनियादी जरूरियात जैसे खुराक, कपड़े और रिहाइश से लेकर मुख्तलिफ ममालिक में कानून साजी तक अपना अपना किरदार निभा रही हैं और अपनों से दूर परदेशियों की जिंदगियों में सहूलियात फराहम करने के लिए अपना अपना हिस्सा शामिल कर रही है। ऐसी ही एक फेडरेशन स्पेन के शहर सबादिल में कायम हुई, जिसे फेडरेशन दिल बाइस का नाम दिया गया था। ये फेडरेशन गैर मुल्कियों को रिलीफ फराहम करने, उन्हें नए मुआशरे में जम होने, अपना किरदार अदा करने और तरक्की की नई राहें तलाश करने में न सिर्फ मुआवन और मददगार साबित हुई, बल्कि नए प्रोग्राम्स और मुख्तलिफ सेशंस के जरिए मुस्तकिल आगाही का सिलसिला भी जारी रखे हुए है। फेडरेशन की 10 साल कारकर्दगी पर सबादिल के सिटी हॉल में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें बड़ी तादाद में मुख्तलिफ कम्युनिटीज के अफराद, फेडरेशन के ओहदेदारान और वर्कर शरीक हुए। सेक्रेटरी इमिग्रेशन ओरियोल अमारोस खास तौर पर इस तकरीब में शरीक हुए थे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी सुफियान यूनस और शहजाद वड़ाइज कर रहे थे। 10 साल तकरीबात में हम उन दोस्तों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं जो हमारे साथ इस लॉन्ग मार्च में चले थे। उसके अलावा इस अरसे में जिन जिन लोगों ने हमारी फेडरेशन, जिसका नाम है फेडरेशन दे एसोसिएशन दे इमिग्रेंट दिल बाइस, उसका मुख्तसर नाम 5 भी है, तो 5 के साथ जिन लोगों ने ताउन किया था, आज हमने उनको एक इनाम भी दिया है, एक तराजू की शक्ल में, जिसका मकसद के खुशतीसिया इंसाफ हर एक के लिए। फेडरेशन दिल बाइस जो है ये तारकीन वतन के हकूक़ के लिए काम करती है। ऐसा जब कोई कानून बनता है जैसे तारकीन वतन के हकूक़ जो है मजरूह हो रहे हों या उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हों, तो उसमें ये आवाज़ अपनी उठाती है, सबको इकट्ठा करती है और उन मसाइल को जो है हल करने के लिए, और कानून साजी ऐसी जो हमेशा नरम हो, लचक रखती हो तारकीन वतन के लिए, उसमें मुआवनत का किरदार अदा करती है। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली शख्सियात को खुसूसी शील्ड्स और सर्टिफिकेट से नवाजा गया। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद मौजूद थी। शाहिद अहमद शाहिद और 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। रूस में पाकिस्तान कम्युनिटी सेंट पीटर्सबर्ग के ज़रिए एहतमाम 92 न्यूज़ यूके की दूसरी सालगिरह मनाई गई, जिसमें मॉस्को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हेड ऑफ कमीशन फॉर पाकिस्तान ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का मज़ीद हवाल शाहिद घुम्मन की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान कम्युनिटी सेंट पीटर्सबर्ग के सदर डॉक्टर फरूक खान होती और डायरेक्टर आसफ सदीकी की जानिब से 92 न्यूज़ यूके की दूसरी सालगिरह का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने शिरकत की और 92 न्यूज़ की सहाफ़ती खिदमत पर खराज तहसीन पेश किया। मॉस्को चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के हेड ऑफ कमीशन फॉर पाकिस्तान स्तानिस्लाव कार्लिव और सेंट पीटर्सबर्ग में सफारत खाना पाकिस्तान मॉस्को के एजाजी काउंसलर अब्दुल रऊफ रिंद ने सालगिरह की तकरीब में खसूसी तौर पर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए शुरा का कहना था कि 92 न्यूज़ ने इंतहाई कम मुद्दत में पूरी दुनिया में अपनी उम्दा सहाफत का लोहा मनवाया है और इसका सेहरा 92 न्यूज़ की पूरी टीम, मैनेजमेंट और दुनिया भर में फैले हुए नुमाइंदगान के सर है। больше было положительных. हमारी तरफ से हम ये चाह रहे हैं कि अल्लाह उनको खुश रखे, अल्लाह तरक्की दे, और मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि 92 पाकिस्तान की वाहिद चैनल है जो रशिया में है। मैं 92 की दूसरे साल की सालगिरह पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ 92 चैनल को। सालगिरह की तकरीब में शरीक अफराद का मजीद कहना था कि 92 न्यूज़ ने रूस में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी की तकारीब की कवरेज और उनकी आवाज़ को हुकूमती ऐवानों तक पहुँचाया, जबकि रूस और पाकिस्तान के मौजूदा खुशगवार ताल्लुकात में भी 92 न्यूज़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तकरीब के इख्तिताम पर शुरा ने मिलकर 92 न्यूज़ यूके की दूसरी सालगिरह का केक काटा।
جی سینٹ پیٹرزبرگ کمیونٹی کی طرف سے پاکستان کمیونٹی سینٹ پیٹرزبرگ کی طرف سے آج 92 نیوز یو کے کی دوسری سالگرہ کا کیک کاٹا گیا. یہ ماسکو کے بعد دوسرا موقع ہے اور پچھلے سال بھی پاکستان کمیونٹی سینٹ پیٹرزبرگ نے بڑے والہانہ انداز میں سالگرہ منائی تھی اور ان کی محبت ہے 92 نیوز سے اور انشاءاللہ ہم بھی 92 کے بحاف سے وعدہ کرتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی کی آواز کو حکمرانوں تک پہنچاتے رہیں گے, پاکستان تک ان کی آواز پہنچتی رہے گی اور 92 نیوز پاکستان کمیونٹی کے ساتھ ہمیشہ ساتھ کھڑا رہے گا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہد گمان, 92 نیوز, سینٹ پیٹرزبرگ, روس. شمالی علاقہ جات میں سردی کی شدید لہر جاری ہے. بہتے دریا, ندی نالے اور چشموں کا پانی بھی منجمد ہو گیا. کشمیر اور دیگر شمالی علاقہ جات میں کئی روز تک جاری رہنے والی برف باری نے درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے گرا دیا. خصوصاً بلتستان ڈویژن ان دنوں شدید سردی کی لپیٹ میں ہے. خون جما دینے والی سردی نے لوگوں کو گھروں میں محصور کر دیا ہے. کاروباری اور تجارتی سرگرمیاں معطل ہو کے رہ گئی ہیں. درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے گرنے سے گھروں کے پائپ لائن کا پانی بھی جم گیا ہے. موسمیات کے مطابق آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کے مطابق اسکردو -18, استور اور گوپس -12, بکوٹ -11, گلگت -8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسلام آباد سمیت پنجاب اور بالائی سندھ کے بیشتر میدانی علاقے جبکہ خیبر پختونخوا کے بعض اضلاع بھی شدید دھند کی لپیٹ میں رہے. برف باری کے باعث کئی بالائی علاقوں کا شہروں سے زمینی رابطہ منقطع ہونے کے باعث رہائشیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. سخت سردی کے موسم میں لکڑی, گیس سلنڈرز اور بٹی کے تیل کی مانگ میں بھی اضافہ ہو گیا ہے. اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز یو کے.